I want to be vulnerable this morning and share a very personal thing. मैं आज सुबह दिल खोलकर एक बहुत ही व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ. You know, when I came into the Lord, my niece, she was 2.5 years old, and I was a new believer at that time, but passionate, loving the Lord. जब मैंने प्रभु को जाना, मैं एक नया विश्वासी था उस समय और बहुत प्यार करता था प्रभु के लिए, बहुत दीवाना था. और मेरी जो भतीजी थी उसमें बहुत छोटी थी. She got diagnosed with blood cancer. उसको ब्लड कैंसर निकला, डॉक्टर ने कहा. And you know, my Masi had not eaten food for like, she and her husband, for like 3 days. मेरी मासी और उनके पति ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था. And I went and I prayed for her. और मैं गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की. She got up. She was completely unconscious. She got up and started playing. वो पूरी तरह बेहोश पड़ी हुई थी और वो उठी और वो खेलने लग गई. I was very happy. मैं बहुत खुश हो गया. They went and checked with the doctors here. Doctor said she's fine. और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है. They went back to Dehradun and in some days she died. और वो वापस देहरादून चले गए और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई. And that was the time where I said, Jesus, I don't want you in my life. और वो समय था जब मैंने यीशु से कहा, यीशु मुझे आप नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में. And I said, I don't want to do anything with you. I will never tell people about you. In fact, I will tell that you are not real. मैंने कहा मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं है. मैं लोगों को आपके बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि ये सब ढोंग है, आप सच में नहीं हो. And for 10 days, और 10 दिन तक, you know, he was always there for me, but I showed him my back. वो हमेशा मेरे लिए वहां पर था, लेकिन मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ ली थी. And 10 days, I still remember those 10 days as living on hell on this earth. 10 दिन मुझे अभी भी याद है, वो 10 दिन, क्योंकि मैं नरक में जी रहा था जिंदा होते हुए. And every time I would feel him, hear him calling me back. और हर बार मैं उसको सुनता, उसकी आवाज को सुनता, मुझे बुलाते हुए. And then one auntie who had mentored us, she's now with the Lord. She had come to Delhi for a meeting, and I had not shared this with anyone. और फिर एक आंटी जो हमारी मेंटर थी प्रभु में, और अभी वो प्रभु के पास जा चुकी हैं. और जब वो दिल्ली आई एक सभा के लिए, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी, मेरे साथ जो चल रहा था. And she used to love me dearly, and I was always known as a young man on fire for the Lord. But nobody knew what was happening in my heart. और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और सब मुझे जानते थे एक ऐसे जवान के रूप में जो परमेश्वर के लिए जलता है आग से, पर उनको नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है. And she was preaching, and I was there in the end, just near the door. और वो प्रचार कर रही थी जहां पर सभा चल रही थी. मैं बिल्कुल पीछे, बिल्कुल अंत में दरवाजे के पास था. I didn't want to be a part of that meeting. मैं उस सभा का हिस्सा होना तो नहीं चाहता था. But because I honored her, so I went with लेकिन her. क्योंकि मैं उनका आदर करता था, इसलिए मैं वहां चला गया. And she had no idea about this. और उनको कोई अंदाजा नहीं था मेरे जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में. And she was preaching a fiery message. और वो प्रचार कर रही थी एक आग से भरा हुआ संदेश. And then in the middle of that message, she stopped and started sobbing and crying. और उस संदेश के बीच में वो रुक गई और फूट कर रोने लग गई. And started to prophesy. और वो भविष्यवाणी करने लगी. And God speaking to me through her. और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे उनके द्वारा. And he said, "My son, come back." और उन्होंने कहा, मेरे बेटे वापस आ जा. There are things you don't understand right now. कई बातें हैं जो तू इस समय नहीं समझता. But don't doubt my love for you. लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इस बात पे कभी संदेह मत करना. Pleading, begging. पिता मुझसे विनती कर रहा था. And that was the day I knelt down and I said, Lord, there are many things I would never understand on this earth. Why bad things happen, maybe we'll not understand. But Daddy, I'll never doubt your love for me. और वो दिन था जब अपने घुटनों पर आ गया और मैंने कहा, पिता, हो सकता है मैं कभी ना समझूं कि क्यों कई बातें दुनिया में होती हैं, क्यों बुराई होती है, लेकिन मैं कभी भी आपकी भलाई पर दोबारा उंगली नहीं उठाऊंगा. And that day I saw the heart of God, that how he can even beg to bring us back home. और उस दिन मैंने पिता के दिल को देखा, कैसे वो उस तड़प के साथ वो भीख मांग सकता है कि वापस हम घर आ जाएं. You know, like your son, your daughter, जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी, they want to leave you, go away, and mom and dad, they're begging, and वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं और माँ बाप भीख मांग रहे हैं. And I pray that we'll just encounter this Father's heart for us. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में पिता के दिल का अनुभव कर पाएं. I'm not saying that life is a bed of roses. There are things that come against us, but one thing I have made my life steadfast,
Lord, I will never doubt your love for me. मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी फूलों से भरी हुई राह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात पर मेरी नींव गड़ी हुई है कि मैं कभी भी तेरी भलाई पर पिता उंगली नहीं उठाऊंगा. You know, the reason I'm sharing this is that many people talk to me and they say, oh, we see you as a man of faith. I denied him. और मैं इसीलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं कि आप तो बहुत विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसका इनकार किया था. But he never denied me. लेकिन उसने कभी मेरा इनकार नहीं किया. And he will never deny you. और वो ना ही कभी आपका इनकार करेगा. And in the same manner, I feel there is somebody here and God is speaking to you this morning. और वैसे ही मैं महसूस कर रहा हूँ कोई आज यहाँ पर है इस दिन. And you are just in this place for the sake of it. और आप सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर आए हैं. And the Father is telling you, come back home. और पिता आपसे कह रहे हैं वापस आ जा. Come back home. वापस घर आ जा. Don't doubt my love. मेरे प्रेम, मेरी भलाई पर संदेह मत कर. Amen. Maybe we'll never understand so many things. हो सकता है हम कभी ना समझे बहुत सारी बातें. But Jesus demonstrated his love while we were yet sinners. He died for us. लेकिन यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मर गया. Amen. Your Father will never give up on you. आपका पिता कभी भी आप पर हार नहीं मानेगा. You know, usually we give up on him. He never gives up on us. और जब हम उस पर हार मान लेते हैं, वो कभी हम पर हार नहीं मानता. Amen. 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 You know, when he called me into this ministry, I said, Lord, जब उसने मुझे सेवकाई में बुलाया, मैंने कहा प्रभु, wrong choice. गलत चुनाव कर लिया आपने. And he said, I didn't call you because of your faithfulness. उसने कहा मैंने तुझे तेरी विश्वास योग्यता के कारण नहीं बुलाया. I called you because of my faithfulness. लेकिन मैंने तुझे अपनी विश्वास योग्यता के कारण बुलाया. I didn't call you because of your righteousness. तेरी धार्मिकता के कारण तुझे नहीं बुलाया. I called you because of my righteousness. लेकिन अपनी धार्मिकता के कारण बुलाया. Amen. We haven't been called because of how good we are, how talented we are. हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम कितने अच्छे हैं, कितने टैलेंटेड हैं. He has called us because he is faithful. उसने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि वो विश्वास योग्य है. Amen. Come on, let us run to the Father's house. आइए हम पिता के घर में भागते हुए Let वापस. us ask Holy Spirit, fill our heart with that passionate, burning love. Jesus, you are the first love in our lives. उससे कहें उस दीवाने प्रेम से हमें भर दे प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा पहला प्यार है. दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने जब एक बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह से पीछे हट गए, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें फिर से अपनी सेवकाई के लिए बुलाया. क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है. उसका प्यार सच्चा है, क्योंकि संसार में हमारे सही होने के बावजूद भी लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे गलत होने के बावजूद भी वो हमें मौका देता है, वो हमें अवसर देता है. क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जब पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा. और जब हम आज खुदा का इनकार करते हैं गलती से, अगर जानबूझकर आप इनकार कर रहे हो, क्योंकि खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि हमारे मन में क्या है. क्योंकि बाइबल साफ कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जांच और परख लूँ कि तुम्हारे मन के भीतर क्या है, हमारे मन में क्या है. परमेश्वर उस बात को बहुत भले भांति तरीके से जानता है. अगर आपने अपने शब्दों से ही प्रभु का इनकार किया है, लेकिन आपका मन अगर प्रभु के निकट है, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको अवसर दे सकता है. लेकिन हमें कभी भी हमारे प्रभु का इनकार नहीं करना है, क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है, संसार का कोई भी मनुष्य, कोई भी आपसे कितना प्यार क्यों ना करता हो, वो कभी भी आपके लिए ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा बलिदान, ऐसा प्रेम आपसे नहीं करेगा. क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है. दोस्तों, ऐसी ही घटना हमें बाइबल में देखने को मिलती है, उड़ाव पुत्र की घटना. अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस बात को जानते होंगे कि किस प्रकार से ये जो उड़ाव पुत्र था अपने पिता का जो धन दौलत था उसमें इतना मग्न हो गया, इतना खो गया कि अपने पिता को कहने लगा कि हे पिता, मुझे अपना हिस्सा दे दे ताकि मैं अपने मन मुताबिक अपने जीवन जीऊँ.
उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, बहुत उसे कोशिश की कि ये ना जाए, लेकिन ये बेटा मानने को तैयार नहीं था और इसकी जिद से हार कर उसके पिता ने उसका हिस्सा उसे दे दिया। और जब वो हिस्सा मिला उसे, वो संसार में लौट गया, यारी दोस्ती में, गलत संगति में, गलत लोगों में जब लौट गया तो लोगों ने उसे इस्तेमाल किया, लोगों ने इसे यूज किया। वो दुख में आया, वो परेशानी में आया, जब उसके पास कुछ नहीं था लोगों ने इसे छोड़ दिया, त्याग दिया। और तब उसी की आंखें खुली जब वो खाने का मोहताज हो गया, जब वो सूअर की रोटियों को खा रहा था, जब वो सूअरों को चरा रहा था, तब उसकी आंखें खुली। और जब उसे पता चला कि मुझे पिता की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बिना पिता के मैं कुछ भी नहीं हूँ संसार में। जैसा कि प्रभु की दास इन्होंने कहा कि 10 दिन मेरी ज़िंदगी नरक के समान हो गई थी। मैं जी तो रहा था लेकिन नरक में जीने के समान मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी, क्योंकि मैंने प्रभु का इनकार किया था। लेकिन प्रभु हमारे मनों को जानता है और प्रभु ने इनको अवसर दिया। ऐसा ही हमें घटना में देखने को मिलता है, जब उस पिता ने उसका रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन जब बेटे को पता चला कि मेरे पिता की मुझे कितनी आवश्यकता है, तो उसने देखा कि मैं आज इतना भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के घर पे जाऊँगा, क्योंकि मेरा पिता तो हमारे नौकरों को भी बहुत अच्छा खाना देता है। और वो वहाँ से चल दिया। और जब वो घर पे पहुँचने ही वाला था तो उसके पिता की नज़रें उस रास्ते पे लगी हुई थी, और उसके पिता ने उसे दूर से देखा और भागकर उसे अपने गले से लगाया, उसे फिर से वो सब कुछ लौटाया जो एक बेटे का अधिकार था, हक था। पिता ने उसे लौटाया, क्योंकि पिता हमसे प्यार करता है। उसका प्यार झूठा नहीं है, उसका प्यार सच्चा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और प्रभु का इनकार कर चुके हो, आप घुटनों पे आए और पश्चाताप करें, क्योंकि वो आज भी आपका यहाँ वेट कर रहा है। वो आज भी आपसे प्यार करता है। हो सकता है हम उसका इनकार कर दें, लेकिन वो कभी हमारा इनकार नहीं करता। वो सच्चा है, उसका प्यार सच्चा है, क्योंकि उसने कहा हो सकता है तेरी जन्म देने वाली माता तुझे भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। प्रभु सच्चा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उसके पास आएँ, उससे प्यार करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।